हमारे वक्त की धड़कन, हमारा चिंतन, हमारी भावनाएं, हमारे विचार, कभी कोमल बातचीत तो कभी इंटरेक्शन तेज तर्रार। तय करें मिलकर व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट। ITV पर अशोक व्यास के साथ इनसाइट टुनाइट। नमस्कार, मैं अशोक व्यास। कार्यक्रम का नाम इनसाइट टुनाइट विद अशोक व्यास। आज का दिन महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज के कार्यक्रम में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो आपके, हमारे बीच में, हमारे आसपास, हमारे चारों ओर है और हमारे अंदर जिस तरह की भावना होती है वो हमारे अनुभवों का संसार रचती है। The world that we live in, we talk about the importance of coexistence, we talk about respecting each other, we talk about trusting each other, and yet there is so much distrust around us. There are many news items which bothers us, which disturbs us, and we want to find a way which would help all of us in moving towards that world जिसके बारे में कभी इस तरह का फिल्मी गीत आया था कि आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। ये जो प्यार की बात है, इसको लेते हुए जब हम एकता की तरफ बढ़ते हैं, विजन ऑफ वननेस की चर्चा करते हैं, तो किस तरह से ये विजन ऑफ वननेस हमारी डेली लाइफ में आ सकता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, वेयर डू वी लर्न दिस सेंस ऑफ बीइंग वन विद वन सेल्फ, विद आवर नेबर्स, विद द नेचर। टुडे वी हैव अ वंडरफुल ग्रुप ऑफ intelligent minds here at our studio who are going to be helping us in figuring out the secret behind this vision of oneness on different levels. And of course you can also participate in this conversation by calling at 718-784-3232, and the theme is vision of oneness. Let me have the pleasure of welcoming first of all someone who has worked closely with the community, Swarnjit Singh ji. He founded an organization to increase awareness about Sikhism. World Sikh Peace Foundation has been active since 2002. He has been also active in various ways, tried his hands in politics actively, has helped people in realizing their dreams through his real estate business. And then I also have the presence of Shastri Jagdish Tripathi ji. Aapka swagat hai. And I wouldn't say much about him, just the fact that he has his art resonating with the presence of the all-pervading, with the help of Hindu scriptures. Mainly he also preaches and performs rituals. Then I have the pleasure of welcoming Dr. Sunil Mehra ji. He is trained in 4 different branches: pulmonary disease, internal, critical care, and geriatrics, which helps old age. Old age. And I also take the pleasure in welcoming Sunil Mehra ji. As Dr. Sunil Mehra ji, I was mentioning, I forgot to mention that he's vice president of a very important organization, which is Association of Indian Americans. AIA. And president of this organization is Sunil Modi ji. Sunil ji, welcome. He has his business as well as he is environmental engineer. तो पर्यावरण के बारे में, प्रकृति के बारे में वो बहुत कुछ जानते हैं और हम बातचीत शुरू करते हैं उन्हीं से। As we are growing up, do we take these values in our system wherein we have this sense of oneness with the world? आपके केस में अगर आप अपने बचपन की तरफ लौटते हुए यादों में याद करें, कब आपको लगा कि सबके साथ भाईचारा हो, सबके साथ प्रेम हो, ऐसी कोई बात हमें सिखाई जाती है बड़े होते हुए? मैं बड़ा हुआ एक ऐसे टाउन में जहाँ पे बहुत डाइवर्सिटी थी। पंजाब में एक ऐसा टाउन है जहाँ पे 50% मुस्लिम पॉपुलेशन है और 50% हिंदू पॉपुलेशन है।
तो उस टाउन में ग्रो अप होते हुए हमें आई थिंक 10-12 साल की उम्र तक तो हमें कोई भेदभाव पता ही नहीं था, बिकॉज यू नो वी वेंट टू स्कूल विद एवरीबडी, वी प्लेड टुगेदर विद एवरीबडी. So that oneness is automatic. Especially I think it's common I think throughout India कि लोग oneness के भाव से ही grow up होते हैं, पर कहीं पे जाके शायद वो distinction शुरू हो जाती है. And that is why we are here to talk about that कि भी कैसे उस distinction को हम merge कर सकें और उन दीवारों को हम गिरा सकें. और तो वैसे मेरा योगा में भी बहुत इंटरेस्ट है. तो योगा की तरफ हम वापस आते हैं. मैं फिलहाल चलता हूँ डॉक्टर सुनील मेहरा जी की तरफ. और आप जानते हैं हम सबसे ज़्यादा कि शरीर जो मनुष्य का है उसके अंदर क्या क्या विशेषताएं हैं और क्या ऐसी बातें हैं जो कॉमन है जो कहीं ना कहीं हमें वननेस की तरफ ले जाती है. आई थिंक जब एज ए मेडिकल स्टूडेंट जब हम डिसेक्शन करते हैं तो रियलाइज करते हैं हार्ट चाहे मेरा हो, किसी काले का, गोरे का, हिंदू का, सिख का, सेम है. हार्ट, लंग, स्टमक, ऑल द ऑर्गन्स आर सेम. द सोल इज देयर. आई थिंक जो थॉट प्रोसेस है दैट डिफर्स अस. एक जो हिंदू है चाहे यदि उसको सरदार जी ने पाला हो तो वो सिख अच्छा ग्रंथ साहब का भगत होएगा. एक उसको मुसलमान ने पाला होगा तो कुरान का भगत. सो आई थिंक इट्स एनवायरमेंटल फैक्टर्स विच प्ले अ लॉट ऑफ रोल. नो डाउट जेनेटिक्स प्ले अ लॉट ऑफ रोल, पर जो हमारा एनवायरमेंटल है factor, they play a lot of role. I'm from Amritsar, very small place. As you mentioned, that I never knew there was a difference between Hindus and Sikhs until I came here, and it came after 84, which is a sad thing. But growing up in a mixed family, my dadi is Sardar, my mamajis are Sardars, my sister-in-law is Sardar. So there's no change at all. I think वो concept जो thought process है, जो poison है हमारे आसपास, whether it's religious leaders और पॉलिटिकल लीडर, वो स्पॉइल कर रहे हैं. तो आई थिंक यदि हम इससे उभरना चाहते हैं तो, क्योंकि ह्यूमन बॉडी तो एक ही है. आप मेरे का नाम इस्लाम में दे दोगे तो डिफरेंट हो जाएगा, या मैं हिंदू या मेरे को सुनील सिंह कह दोगे तो डिफरेंट, मैं डिफरेंट नहीं होऊंगा. आपने अभी जो बोला था बड़ा सा गुनाली देवी का, ईश्वर अल्लाह नूर पाए कुदरत के, अव्वल अल्लाह नूर पाए कुदरत से बंदे, एक नूर से सब जग उपजा को सुमंदे. सो उसने बनाया हमने सबको, चाहे हम उसे ओम बोल दें, चाहे एक ओंकार बोल दें, चाहे अल्लाह बोल दें. तो आई थिंक हमें अपना थॉट प्रोसेस चेंज करना है, बाकी तो सब सेम ही है सब. तो थॉट प्रोसेस चेंज करने वाली जो बात है और दूसरों के साथ इस तरह से संबंध बनाने की बात है जहां हमारा भी सम्मान बना रहे, वो हमें पहचाने और हम उनका भी सम्मान करते रहें, कर पाएं और ये समझें कि पारस्परिक सम्मान बहुत महत्वपूर्ण है. ये बात भी कई जगह पर हमारी एकता को तोड़ने लगती है. हमारा जो विजन ऑफ वननेस है वो हमसे छूटने लगता है अगर हमारे साथ ठीक व्यवहार ना हुआ हो. थोड़ा सा उस बात को जोड़ते हुए मैं स्वर्णजीत सिंह जी आपकी तरफ बढ़ना चाहता हूँ. और ख़ासकर उन्होंने 1984 का जिक्र किया, फिर यहाँ 2001 के बाद में भी कुछ घटनाएं हुई जिसके बारे में विशेष रूप से आप प्रेरित हुए और आपने उसको अपने मिशन की तरह लिया कि औरों को इसके बारे में जागरूकता बढ़ानी चाहिए. तो ये दोनों बातों को आप एक साथ रखते हुए देखें. एक जो बेस है जो सारी ह्यूमैनिटी को एक करता है, जिसको लेके हम सबके प्रति प्रेम की बात करते हैं, और फिर ये जो ऐसे अनुभव जो कि कड़वे या दुखद या चिंता में डालने वाले हैं, तो इन दोनों का संतुलन बना के आप भीतर से ये जो एकता है उसको बनाए रखें. ऐसा जो आपकी प्रक्रिया है वो बांटे हमारे साथ. जो मैं समझता हूँ सबसे बड़ा कारण हमारी अज्ञानता है. इग्नोरेंस क्रिएट्स फियर एंड फियर क्रिएट्स हेट्रेड. और इग्नोरेंस को रिमूव करने का एक ही तरीका है, टू नो द अदर पर्सन. जिसके बारे में आपको इग्नोरेंस है उस इंसान को अगर आप जानना चाहें, हम एक ही खुदा के बंदे हैं, एक ही ईश्वर के बंदे हैं, एक ही उस परमात्मा के बंदे हैं जिसने हम सबको क्रिएट किया. और रिलीजन्स आर ऑल मैन मेड. ईश्वर ने कोई रिलीजन नहीं बनाया, रिलीजन हमने बनाया है. जब प्रॉफिट मोहम्मद आ गए उसके बाद इस्लाम आ गया, उससे पहले जीसस आ गए, क्रिश्चियनिटी आ गई, उससे पहले हिंदू रिलीजन जो है सबसे पुराना 5-4 साल पुराना है. डिफरेंट हिंदू रिलीजन में कितने डिफरेंट सेक्ट क्रिएट हो गए. हम खुद क्रिएट करते हैं. जब गुरु नानक आ गए तो सिखिज्म शुरू हो गया. वी क्रिएटेड इट.
गॉड नेवर क्रिएटेड नो रिलीजन। इंसान को परमेश्वर ने बनवाया है, इंसान को परमेश्वर ने बनाया और हमने अपने रिलीजन बना लिए अपने बेनिफिट के लिए, अपने फ़ायदे के लिए। वट एवर द रिलीजन्स आर, कि हमारा धर्म अच्छा है, आपका धर्म अच्छा नहीं है, उसका अच्छा है, उसका अच्छा नहीं, दिस इज़ ऑल आवर थिंकिंग। रिलीजन इज़ देयर टू मेक अस ए बेटर पर्सन। If we are not, if going to temple, going to Gurdwara, going to church, going to mosque, अगर हमारे विचार अच्छे नहीं होते हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको गीता, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब या बाइबल या टोरा आपको अच्छा इंसान नहीं बनाती, आपके भाव चेंज नहीं होते, तो क्या फ़ायदा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वी शुड रिस्पेक्ट द फेलो ह्यूमन बीइंग। और जो हम ईश्वर को ढूंढते हैं मंदिरों में, गुरुद्वारों में, गिरजे में, मॉस्क में, ईश्वर हमारे अंदर है, हम सबके अंदर भगवान बसता है, पर हम उसको देखने नहीं चाहते। हम बाहर जाके मंदिरों में ढूंढते हैं ईश्वर को, कभी कोई अंदर नहीं जाता। अब जब भी आपको ईश्वर मिलेगा, ना मंदिर में मिलेगा, ना गुरुद्वारे में मिलेगा, ना मॉस्क में मिलेगा, ना गिरजे में मिलेगा। जब ईश्वर मिलेगा हमारे अंदर मिलेगा। दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो बहुत ही गहरी बात, अंदर तक जाने वाली, और जब तक अपने भीतर नहीं देखेंगे तब तक ईश्वर के दर्शन नहीं होंगे। बाहर की चाहे जितनी यात्रा हो, अगर भीतर की यात्रा नहीं होगी तो वो न मिलेगा जिसे हम सत्य कहते हैं। कुछ इस तरह के संकेत जो सार्थक हैं स्वर्णजीत सिंह जी से हम तक पहुँचे, उन संकेतों को साथ रखते हुए जब मैं जगदीश त्रिपाठी जी की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो हम फिर से मूल प्रश्न की तरफ जाते हैं। विजन ऑफ वननेस की बात करें, अगर एक इंसान अपने आप में ही कितना बटा हुआ, कितना अलग अलग खंड में विभाजित सा रहता है, तो मनुष्य अपने आप के साथ एक हो, जैसे हम कहते रहे कि सुनते रहे कि कथनी करनी जो है वो एक हो, वो चिंतन क्या कर रहा है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप बताएं कि जो कुछ आपने बड़े होते हुए या जो सीखा शास्त्रों से, तो मनुष्य स्वयं के साथ एक हो, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? स्वयं के साथ एक होने के लिए पहले स्वयं को जाने कि वो है कौन, उसको अपनी आत्म परिचय हो, और जब उसे अपना परिचय होगा तो फिर वो एक होने की प्रयास करेगा। और जहाँ तक वननेस का, एकता का प्रश्न है, तो एक जो सार्वभौमिक सच है वो यह है कि मनुष्य यह समझे आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो मुझे मेरे लिए ठीक नहीं लगता, मेरे लिए उपयुक्त नहीं है, मैं जिसे सहर्ष स्वीकार नहीं कर सकता, वही बात, वही व्यवहार दूसरा भी मेरे द्वारा किया जाए तो स्वीकार न कर पाएगा। यदि मैं किसी के द्वारा अपमानित हूँ तो मुझे अच्छा नहीं। मैं कभी कभी अपनी बातों में कहा करता हूँ, यदि एक चोर के घर में चोरी हो जाए, चोर चोरी करके आया है दूसरे का धन, और फिर उस चोर के घर में कोई चोरी करे, तो चोर दुखी हो जाएगा, उसे लगेगा यार मेरी चोरी हो गई। लेकिन उसे यह चिंतन करना है कि अभी तुम जो करके आए हो वो क्या था। तो आत्मना धर्म की सबसे बड़ी मूलभूत परिभाषा ये है। और धर्म कई हो भी नहीं सकते, धर्म एक ही हो सकता है। और धर्म एक हो सकता है, उसको कहेंगे धर्म। और धर्म का जो विलोम होगा वो होगा अधर्म। इसलिए चोर भी चोरी स्वीकार नहीं कर सकता, और सहर्ष वो प्रसन्न नहीं होगा कि मेरी चोरी हो गई। तो जब तुम प्रसन्न नहीं होते हो चोरी के धन के जाने से, तो जिसको तुमने चुराया वो कैसे प्रसन्न होगा। इसलिए यदि मनुष्य के जीवन में एकता लानी है और हमें ये सब में देखना है कि वह भी मेरे जैसा है, तो हमें ये देखना होगा कि वही क्रिया यदि मेरे साथ घटित हुई तो मुझे दुख हुआ है, इसका मतलब है कि उसे भी वह पीड़ा हुई होगी। और रामायण में, रामचरितमानस में एक बात कही धर्म के संदर्भ में कि धर्म है क्या। उसको कहा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा श्रम नहीं अधमाई।
दूसरे का हित साधन करने जैसा धर्म इस पृथ्वी पर कोई और नहीं है, और दूसरे का नुकसान करना, दूसरे को पीड़ा पहुंचाना, उससे बड़ा अधर्म इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं है। छोटी सी कहानी है, वननेस के संदर्भ में कहूँ। एक साधु किसी के द्वार पर भिक्षा मांगने गए थे। सुबह सुबह की वेला थी और दीपावली के दूसरे दिन का दिन था। तो घर के अंदर से बच्चों के झगड़ने की आवाजें आ रही थीं। एक बच्चा कह रहा था, साधु ने कहा भिक्षाम देहि, कोई आया नहीं, पर अंदर से आवाजें आ रही थी। एक बच्चे ने कहा कि मैं तो ऊंट खाऊंगा। दूसरे ने कहा नहीं नहीं, ऊंट तू नहीं खा सकता, ऊंट तो मैं खाऊंगा, तू हाथी खा ले। दूसरे ने कहा नहीं, हाथी ये कैसे खाएगा, हाथी तो मैं खाऊंगा, तू भालू खा ले। 3-4 बच्चे आपस में झगड़ रहे थे। एक कह रहा था मैं हाथी खाऊंगा, एक कह रहा था घोड़ा खाऊंगा, एक कह रहा था भालू खाऊंगा। साधु ने सोचा कि सुबह नाश्ते में यदि हाथी घोड़ा भालू खाते हैं तो दोपहर में क्या खाते होंगे। अब साधु ने सोचा कि अब तो मैं रुक के ही जाऊंगा, जरा देखूं ये बच्चे कैसे। अंदर से दुबली पतली सी गृहिणी आई, उसने भिक्षा दी साधु को। उसने कहा माता भिक्षा तो मुझे मिल गई, मुझे तेरे बच्चों के दर्शन करने हैं जो हाथी घोड़े भालू खाते हैं। तो गृहिणी मुस्कुराई, बोले बाबा ये हाथी घोड़े भालू नहीं खाते। बच्चों को बुलाया, एक प्लेट में एक टोकरी में शक्कर के खिलौने रखे हुए थे जो दिवाली पर हम लक्ष्मी जी के सामने रखते हैं। तो कोई की शक्ल घोड़े की थी, कोई हाथी की तरह, कोई भालू की तरह बना हुआ था। और वो टोकरी लेकर के आए, बोले बाबा इनका झगड़ा समाप्त करो। संत ने कहा बेटा इस हाथी कौन खाना चाहता, बोले मैं। इसका पैर खा, पैर खाया, कैसा लग रहा, मीठा है। सूंड खा, सूंड भी वैसी लग रही। बोली जो हाथी में है वही घोड़े में है, वही भालू में है, वही प्रत्येक खिलौने में वही तत्व है जो इसमें है। इसलिए हम सब, अभी जैसे स्वर्णजीत सिंह जी ने कहा कि समस्त जगत एक से उपजा है और हम सचमुच एक हैं। और यदि हमें इसको समझना है तो पहला सूत्र जो मैंने कहा था, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। मुझे जो ठीक नहीं लगता वो किसी को ठीक नहीं लग सकता, इसलिए मैं वो करूं, मैं वो कहूं, वो मैं वैसा चलूं जैसा मैं स्वयं के लिए चाहता हूं। तो अपने आप सारी धरती में वननेस हो जाएगी। त्रिपाठी जी ने बहुत ही सुंदर बात कही। अब इस बात को अपने साथ रखते हुए जब हम ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं तो ब्रेक से लौटकर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि दूसरों के साथ हम तो वो व्यवहार न करें जो हमें अपने लिए पसंद नहीं है, पर यदि उस तरह का व्यवहार हमारे प्रति होता है तो हम उसका सामना कैसे करें। उसके बाद हमारी मधुरता क्या कटुता में नहीं बदल जाएगी। और इस तरह के समाचार जो हमें रात दिन उद्वेलित करते हैं, जिसमें ताज़ा ताज़ा बोको हरम नाम के किसी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने निर्दोष बच्चियों को नाइजीरिया में स्कूल से अगवा कर लिया और बाद में वहाँ जाके कई निर्दोष लोगों को मार दिया। जब इस तरह की खबरें हम पढ़ते हैं तो फिर ये वाला जो तथ्य है कि हम दूसरों के साथ वो व्यवहार न करें, उसके बारे में हमें से कुछ लोग पुनर्विचार करने लग जाते हैं क्या? बात करेंगे इसके बारे में। बने रहें हमारे साथ राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक टू इनसाइड टुनाइट विद द शो। हम आज बात कर रहे हैं विजन ऑफ वननेस की। वननेस का जो विजन है वो क्या सचमुच प्रैक्टिकल है मनुष्य के लिए? जिस तरह की चुनौतियां हमारे सामने आती हैं उनका सामना करते हुए क्या ये बोध बना रहता है कि मैं इस प्रकृति का अंश हूँ? स्वामी विवेकानंद के शब्द याद आते हैं कि त्याग और सेवा भारत के राष्ट्रीय आदर्श हैं, पर उन आदर्शों को जब आप भारत में भी क्रियान्वित होता हुआ नहीं देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि ये सारी बातें क्या सिर्फ कहे जाने के लिए हैं, जिसमें हम ये सुनते रहे हैं कि दूसरों के साथ वो व्यवहार न करें जो हमें अपने लिए पसंद नहीं है। विपरीत परिस्थितियों का सामना करने में योग किस तरह से हमारी मदद करता है, इसके बारे में मैं निवेदन करूंगा सुनील जी से, जो मोदी जी काफ़ी बरसों से योग का अभ्यास करते रहे। तो योग आपके लिए क्या है और एडवर्स सर्कमस्टेंसेस को डील करने में ये अभ्यास कैसे मदद करता है? राइट।
देखिए, योग का तो सारा आधार ही यही है कि हमने वननेस को कैसे एक्सपीरियंस करना है। जो अष्टांग योग में जो 8 स्टेप्स जो बताए जाते हैं, उसका जो लास्ट स्टेप है वो समाधि है। तो समाधि से पहले ऑफ कोर्स आसनास है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है, फिर समाधि आता है। तो समाधि मीन्स वननेस। तो वननेस क्या है, इसमें योग जो पतंजलि योग सूत्र जो हैं उसमें उन्होंने काफ़ी डिटेल में इसको एज ए साइंटिफिक प्रोसेस बना के समझाया है। और क्योंकि योग ये मानता है कि वननेस तो मेरे अंदर जो एक स्पिरिट है, जो मेरे अंदर एक जो सोल है, वो ही सोल यूनिवर्स में भी है। तो वो जो सोल है वो यूनिवर्सल सोल का ही तो एक भाग है। तो वननेस तो ऑलरेडी है। अगर वो सोल मेरे अंदर नहीं है तो यही आंखें नहीं देख सकती, यही कान नहीं सुन सकते, ये नाक कान कुछ भी किसी चीज़ की कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह जाती। तो वो क्या चीज़ है जो इनके पीछे है, जो आँखों को दिखा रही है, नाक को स्मेल करवा रही है और टेस्ट करवा रही है, तो वो आत्मा है। और वही आत्मा एक यूनिवर्सल आत्मा में भी वही आत्मा बसती है। तो वो उस वननेस को जब हम एक्सपीरियंस करते हैं तब हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है, तब हमारी हैप्पीनेस बढ़ जाती है, हमारी कंटेंटमेंट बढ़ जाती है, हमारा गुस्सा ख़त्म हो जाता है किसी और चीज़ के लिए। जब हमें दूसरों के साथ कोई भिन्नता ही नहीं नज़र आ रही, so where is the room for anger or stress or any kind of envy, right? Automatically the love will increase, automatically the health will improve. तो योग इसको इस तरीके से समझाता है वननेस को। और आप पाएंगे कि जितने भी हमारे महान गुरु हुए हैं, चाहे वो गुरु नानक थे, चाहे वो जितने भी महान गुरु हुए हैं, वो सब इस 8 स्टेप प्रोसेस को फॉलो करके दे रीच्ड अ स्टेट ऑफ समाधि विच इज़ द अल्टीमेट इन वननेस। एंड बिकॉज दे हैड रीच्ड दैट स्टेट ऑफ समाधि, दे वर एबल टू connect with everybody else. The reason we still listen to Guru Nanak Ji's Vani, or still listen to what Jesus Christ said, or the reason those people are still alive in our lives today is because they had reached a state of samadhi by following these 8 steps: yam, niyam, asan, pranayam, pratyahar, dharana, ध्यान, समाधि। आई नो आज का टॉपिक योग के ऊपर नहीं है तो मैं उसको डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर अगर यम से भी शुरू करें तो वो एक प्रोसेस है। यम मीन्स सेल्फ कंट्रोल, नियम मीन्स टू अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ लाइफ, कैसे हमने लाइफ को जीना है उसको। फिर आसना मीन्स के देयर हैज़ टू बी सम फिजिकल वर्कआउट फॉर अस टू हैव अ बैलेंस विद इन द बॉडी। आसन, प्राणायाम, ब्रेथ कंट्रोल। सो प्रत्याहार इसको डिटैचमेंट, एंड धारणा मीन्स किसी चीज़ के ऊपर आपको स्थिर होके उसके ऊपर प्रैक्टिस करना, एंड देन समाधि कम्स ऑटोमेटिकली। तो इन 8 स्टेप्स को अगर हम इन महापुरुषों की लाइफ्स को स्टडी करके देखें तो हम पाएंगे कि इन्होंने ये सब चीज़ों की मास्टरी की और इसलिए वननेस खुद एक्सपीरियंस की, और वही वननेस उन्होंने हम सब के लिए बांटी आगे। तो वो वननेस जो उन्होंने बांटी हम सब के लिए, वो आपके माध्यम से हम तक फिर पहुंची। और ये और ज़्यादा इम्प्रेसिव लगता है जब कोई बिजनेस में अपने माइंड को एक्टिव रखने वाला योग के बारे में इस तरह से अनुभूति के रस को साथ लिए हुए ये बात हम तक पहुंचाए। बात सुनने में अच्छी भी लगती है, और जो समाधि के संबंध में थोड़ा सा संकेत मिलता है तो निश्चित रूप से उसमें आनंद है, ऐसा भाव हमारे अंदर आता है। बट अगेन ये बात हम सुनते रहे हैं कि जाके पावना पट्टी बिवाई वो क्या जाने पीर पराई, यानी जिसने मुसीबत खुद नहीं देखी वो दूसरे के बारे में नहीं समझ पाएगा। ऐसा वो मनुष्य सोचेगा जिन्होंने योग के बारे में अनुभव नहीं किया है, पर उनके पास में कई तरह की समस्याएं हैं या उन्हें किसी ने प्रताड़ित किया है। जैसे मैं पहला बात कर रहा था कि बोको हरम नामक संस्थान के लोग निर्दोष बालिकाओं को अगवा करके ले गए, उन्हें कहीं बेच देंगे, इस तरह की बातें वो कहते हैं, तो सुनकर कहीं ना कहीं क्रोध आता है। ठीक ऐसा नहीं, लेकिन इसके आसपास की कोई विपरीत बात यदि हमारे साथ घटित हुई हो तो क्या हमें लगेगा कि ये योग व्यावहारिक है? डॉक्टर सुनील महाराज, जिस तरह के राजनीतिक वातावरण से हम गुजर रहे हैं उसमें बार बार हम देखते हैं कि राजनेता जनता को चाहे कास्ट के नाम पर या रिलीजन के नाम पर अलग अलग वोट बैंक की तरह देख रहे हैं। तो
ऐसे में ये जो योग वाली बात है वो कैसे व्यवहार में बनी रही, ये एकता का भाव कैसे बचाए रहे? चेंज तो लाना पड़ेगा. आई थिंक ओनली पर्सन वी कैन चेंज इज अस, मी, माई फैमिली, माई ग्रुप. तो आई थिंक चेंज तो लाना पड़ेगा. आई थिंक हम कठपुतलियाँ बन चुके हैं या बन रहे हैं कुछ नेताओं में, कुछ धर्मी लोगों में. पर आई थिंक what I learned as growing up in Amritsar, Punjab, from my father, I think your father and mother are my first teachers, ki be good to the other person. I think tolerance lana is a very tough thing. As you said, that koi hame itna nuksan par jaye, so we have to go beyond our level कि इतनी टॉलरेंस हो कि हमें उसमें जाने दे, क्योंकि हमारे तो पंजाब वही कहते नीवा होकर चल के नीवे नूं रब मिलदा. So I think one thing is you stay away from argument. Whatever is happening, you'd still teach the good thing to your family, because you're the best teacher in the house. Your dad, your mom are the best teacher. Then the school. So I think we need to improve on our teachers, professors, our priests, our gurus, that they must give the tolerance to us, give us a good teaching. And that it's a human nature that we have to adapt and get in us to become a better person. So thank you very much, Dr. Saab. Very, very valid point. And let's see what our viewers want to say about this. Namaskar, welcome to ITV Live. आप टीवी का वॉल्यूम कम करके बात करें. जी नमस्ते. नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं तो बहुत अच्छा हूँ. आपकी बातें सुन करके मन को ऐसा लगता है कि आपके पास आके बैठ जाऊं. पास ही बैठे हैं आप जी. हाँ, ऐसा होता है कि आपको देख करके, आपकी विद्वता को देख करके मुझे बड़ा गर्व होता है कि हमारे एक बात सुन लीजिए, बहुत मोटी बात है जी, कि शुरू से जो सृष्टि बनी है ना, उस सृष्टि बनने से और देवता राक्षस पैदा हुए हैं. राक्षस और देवता साथ साथ रहे हैं, एक ही बाप है. और सुनीति कुनीति है जिनका एक देवता है और एक राक्षस है सृष्टि के टाइम पर. जब कभी राक्षस भगवान ने पैदा किए हैं तो राक्षस देवता रहेंगे. ये तो युद्ध होता रहेगा, ये खत्म नहीं हो सकता. आप कितना भी प्रयत्न कर लें, महाभारत के अंदर भगवान कृष्ण ने कोशिश की लेकिन वो नहीं बना सके. ये चलेगा, आप बातें करते रहिए, लेकिन ये कभी बंद नहीं हो सकता, ना होगा. तो आप का नियम है अच्छे बुरे होना, और अच्छे बुरे के अंदर अच्छे विचार रखना, बुरे में विचार रखना. ये चलता रहेगा, ये चलता आ रहा है, चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा. आप ही तो सोच लीजिए. बहुत बहुत धन्यवाद आपने जी, आपने बहुत अच्छी महत्वपूर्ण बात कही. बता रहा हूँ जी जी. जैसे कबीर जी ने कहा, कबीर जी ने ये कहा कि बुरा तो देखकर मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा अपना, मुझसे बुरा न कोई. अगर कोई आदमी सोच ले तब तो ठीक है, नहीं तो दूसरे को बुरा कहता है, हमेशा बुरे को दूसरा, ये बुरा है, ये बुरा, मैं बुरा नहीं हूँ, ये बुरा है. ये चलता है, चलता रहेगा, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता. चलिए, बहुत धन्यवाद है. और मुझे लगता है कि इस दिशा में जो सोच, जैसे डॉक्टर मेहरा ने कहा और जो आपने कहा, वो उसी दिशा में ले जाती है कि हम अपनी तरफ से अच्छे बने रहें इन स्पाइट ऑफ वॉट एवर वी सी अराउंड अस. आप स्वर्णजीत सिंह जी, जब विशेष करके सिखों के बारे में लोगों को परिचित कराने की दृष्टि से अलग अलग समूहों में जाते रहे, तो क्या आपका अनुभव रहा? लोगों की रिसेप्टिविटी कैसी होती है? वेल, अभी भी मेरे को पिछले सिंस 2001 मेरे पास बच्चे आते हैं. दे कम टू द गुरुद्वारा, दे स्टे विद अस इन द गुरुद्वारा. In the morning, I teach them how to make aloo parantha, and I teach them the value system what our Guru Nanak taught us. और वो जो कर रहे हूँ मैं, पिछले 13 साल हो गए मुझे. The kids come from 7 different states. The kids come from very privileged families, and the kids come from very unprivileged families. I happen to go to different colleges. I happen to go to different schools, and I try to educate kids. और मैं हमेशा बच्चों को एक कोट कहता हूँ: Watch your thoughts, they become words. Watch your words, they become action. Watch your actions, they become habits.
वॉच योर हैबिट्स, इट बिकम्स योर करेक्टर, वॉच योर करेक्टर, इट बिकम्स योर डेस्टिनी। सो जो हम सोचते हैं वो हमें अपने, अगर हम अपने विचारधारा पे काबू कर लें सो हमारी उसमें विक्ट्री है। गुरु ग्रंथ साहब में बड़ी अच्छी बात रही, हमारे में 5 चोर हैं और 5 ठग हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, हमारे में 5 चोर हैं और 5 ठग भी हैं। राज, माल, रूप, जात, जोबन, पंजे ठग, इन्हीं ठगी जग ठग गया, किसे न रखी लाज। व्हाट डज इट मीन कि जो हमारे में पावर, जो हमारे में पहली बात तो काम, क्रोध, एंगर, लस्ट, ग्रीड, अटैचमेंट एंड ईगो, दीज आर आवर 5 एनिमीज। हम अकेले हैं और ये जो 5 एनिमीज हैं वो हमेशा ऑल द टाइम कंट्रोल करते हैं हमारे ईगो को। हमारी ईगो इज द बिगेस्ट थिंग। अगर मैंने आपको कोई बात कह दी, मैं यहाँ बैठा हूँ, बट who will get hurt? Your ego will get hurt. How can you dare to say something to me like this? अगर कभी भी दुनिया में लड़ाई होगी, लड़ाई से पहले ज़बानी लड़ाई होगी, और जो ज़बानी लड़ाई है दैट इज़ द मोस्ट वर्स्ट थिंग। मेरे को एक घटना याद आ गई। मैंने पढ़ा था महात्मा बुद्ध को किसने बहुत गालियाँ दी, बुरा बुला कहा महात्मा बुद्ध को, और महात्मा बुद्ध ने कुछ कंकड़ उठाए, उसको बोला भाई ये कंकड़ ले ले। कहता मैं नहीं लेता। कहता तू ले ले। कहता मैं नहीं लेता। कहता अगर तू मेरे 4 कंकड़ नहीं लेता मैं तेरी गाली नहीं लेता, अपने पास ही रख। सो यू नो हाउ वी थिंक वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ वन गॉड। हम सिखों को कहना अच्छा लगता है कि हम गुरु नानक के बच्चे हैं, हम गुरु गोविंद सिंह के बच्चे हैं, हम वाहिगुरु कहते हैं। अपने मेरे हिंदू भाइयों को कहना अच्छा लगता है हम राम के बच्चे हैं, हम किशन की वंश हैं, हम राम की वंश हैं। हमारे मुस्लिम भाई कहते हैं अल्लाह विल टेक केयर ऑफ अस। अपने क्रिश्चियन कहते हैं जीसस विल टेक केयर ऑफ अस। देयर इज ओनली वन गॉड। वी हैव गिवन डिफरेंट नेम्स एज पर अवर ओन नीड्स, बट इफ इन रियलिटी इफ वी थिंक सीरियसली, अगर हम अपने आप अपने विचारों को काबू कर लें, हमारे गुरबानी में एक शब्द आता है मन जीते जग जीत। अगर आप अपने मन को जीत लें, हमारा जो मन है ना, मन मीन्स थॉट। हमारा कभी मन 1 सेकंड में आपको मैं आगरा ले जाता हूँ, ताजमहल दिखाता हूँ, आपको एम्पायर स्टेट बिल्डिंग दिखा सकते हैं, क्योंकि हमारा विचार जहाँ ले जाना चाहें जा सकते हैं। बट द थिंग इज़ इफ़ वी कैन कंट्रोल, जैसे मोदी जी ने कहा कि जो हम साधना करते हैं, योगा करते हैं, उसका मेन आइडिया क्या है? टू कंट्रोल योर थॉट। तो बहुत आपने सारगर्भित बात कही है, और आपकी बात को लेते हुए मुझे मेरी दादी भी याद आ गई, जिन्हें हम काकी जी कहते थे, और वो रात दिन बच्चों को सरल भाषा में याद दिलाया करती थी कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। और ये जो मन की बातें पारंपरिक रूप से शिक्षा के रूप में हम तक आती रहीं, उसमें भारत क्या कुछ बदलता जा रहा है। तो कुछ पंक्तियां जो इंटरनेट से चलती हैं, उसमें से 2 पंक्तियां आपके साथ बांट रहा हूं कि भारत और इंडिया में क्या फ़र्क है। कहते हैं भारत में रसोई है, आंगन है, तुलसी है, और इंडिया में रूम है और कमोड की कुर्सी है। तो जो शौच करने का ढंग है वो भी हमने पाश्चात्य अपना लिया, उसका भी हमारी जो शारीरिक संरचना पर कुछ न कुछ असर पड़ता है। पर मुख्यतः बात घूम फिर कर मन को नियंत्रित करने की, विचारों पर ध्यान देने की कि हम सोच क्या रहे हैं, वो आ जाती है। इस दिशा में क्या संकेत शास्त्रों से हम तक आते हैं, शास्त्री जगदीश त्रिपाठी जी से पूछेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक टू इनसाइड टुनाइट विद द शो। व्यास हम आज बात कर रहे हैं विजन ऑफ वननेस की, और अगर आप ये बात सुन रहे हैं तो एक तरह की एकता स्थापित होती है। जब कोई कहता है, कोई सुनता है, तो एक कुछ बनता है जिससे अर्थ खिलता है। एक हुए बिना अर्थ का पता नहीं चलता है। और एक बात जो हम सब के लिए हर दिन एक रहती है, वो है सूर्य जो हैं वो पूर्व से उगते हैं। उजाला हम सबको अच्छा लगता है, आशा हम सबको पसंद आती है, और वो लोग जो हमारे उत्साह को बढ़ाने वाले होते हैं, उनके प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ती है, उनके प्रति हमारा प्रेम बढ़ता है। पर कई बार हमारा मन स्वयं हमारे मित्र की तरह काम नहीं करता है। तो ऐसे मन और ऐसे मन में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, वो हमें एकता की तरफ
हमारे साथ एकता और जगत के साथ एकता को बढ़ाने वाले हों, इसके लिए क्या किया जा सकता है? शास्त्री जी, आप क्या कहेंगे? मुझे एक प्रकृति के चिंतन में खोया था और मुझे एक बहुत पुरानी कविता स्मरण में आई। उसमें इस तरह था, तुम किसे रिझाते रे निर्जन वन में करके नर्तन मयूर, चिर रम्य मनोरम चंद्र रश्मि फैलाते मद में चूर चूर। हे सुमन तुम ही बतला दो ना अपने परिमल का नव पराग, तुम लुटा रहे हो जगती को हे चिर सुंदर हे वीतराग। हे सूर्य तुम ही बतला दो ना सतत रह जागरूक, क्यों सिखलाते हो दुनिया को कर्तव्य ज्ञान। और इसी तरह बहुत सारे तथ्यों से चंद्रमा से पूछा गया कि बोलो बोलो हे शशि बोलो बोलो, हे शीतलता के अमर स्रोत किस स्वार्थ हेतु किया करते जगती को अमृत वर्षा से ओतप्रोत। संक्षिप्त करूं, सबके स्वर मिलकर बोल उठे जीवन का केवल एक ध्येय, निस्वार्थ कर्म निस्वार्थ कर्म निस्वार्थ कर्म ही प्रेय श्रेय। हम अपने आसपास के वातावरण में देखें और चिंतन करें कि ये पुष्प सुगंध देता है तो क्या किसी की जाति, किसी की पाति, किसी के आंगन में नहीं खिलेगा, यहाँ नहीं बिखराएगा। सूर्य ने कभी जाति पाति धर्म अधर्म नहीं देखा, सब पर सबको जीवन दान देता है। पवन सबको जीवन दान देती है, चंद्रमा सब पर अमृत वर्षा बरसाती है। मयूर से पूछा गया, तुम जंगल में नाचते हो क्यों, किसके लिए? कोई आयोजन है, कोई देखकर तालियां बजाएंगे लोग इसलिए, तुम्हें अवार्ड दिए जाएंगे इसलिए? नहीं, जब मयूर नाचता है तब वहाँ निर्जनता होती है, पर वह अपने आनंद में नाचता है और उससे लोग प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य इस प्रकृति में चारों तरफ बिखरे इनसे संदेश प्राप्त करे और यह जाने कि मैं भी कहीं क्या ऐसे जी सकता हूँ, अपने लिए नहीं सारे चराचर जगत के लिए मैं क्या ऐसा हो सकता हूँ। एक और बात मैं यहीं पर कहना चाहूँगा, नीरज जी को याद करते हुए। उन्होंने कहा कि अब के सावन में शरारत ये मेरे साथ हुई, मेरा घर छोड़कर सारे शहर में बरसात हुई। जो बात मुझे कहनी अभी आगे कहूँगा, पर 2 लाइनें और कहूँगा। फिर उन्होंने कहा कि हमसे न पूछो हमारे सफ़र का हाल यारो, था डाकुओं का जहां गांव वहीं पर रात हुई। अब जो बात कहनी थी वो यहाँ कहते हैं, उम्र भर हुई गुफ्तगू गैरों से मगर, हमसे हमारी अब तक न मुलाकात हुई। हमने सबको जाना, हम कहते हैं मैं उसे जानता हूं, मैं उसे जानता हूं। कोई पूछता है तुम उसे जानते हो? हाँ, मैं तो उसे उसकी नस नस से परिचित हूं। पर क्या तुम तुमसे परिचित हो? यदि हमसे हमारा परिचय हो जाए, हमसे हमारा मिलन हो जाए, हमसे हमारी अनुभूति में हम उतर जाएं, तो मुझे लगता है कि सारी समस्याएं समाधान हो जाएंगी और उस समस्याओं का समाधान कहीं ना कहीं हमारे ही अंतर से उपजेगा। और जब हम चारों तरफ प्रकृति के साथ एक होंगे, जुड़ेंगे, उससे कुछ शिक्षाएं लेंगे, तो मुझे लगता है कि मनुष्य के जीवन में आमूल चूल परिवर्तन हो सकता है। और यही शिक्षाएं सारे धर्म गुरु, सो कॉल्ड धर्म गुरु नहीं, सचमुच धर्म गुरु यही कह गए। और उन्होंने इसीलिए जीवन जिया कि सारे जगत में एकता हो, सब मनुष्य अपने आप को जान सकें, अपने को पहचान सकें। त्रिपाठी जी ने बहुत अच्छे ढंग से हमें प्रकृति से शिक्षा लेते हुए एकता अपने जीवन में लाने की बात कही। और उसके लिए प्रकृति से जुड़ने वाला खुलापन तो हमारे अंदर होना चाहिए ना। पर जिस तरह की जीवन शैली हमारी है, और कल की खबर ली जाए तो भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये कहा कि 10 साल का बच्चा जो है उसको बैंक अकाउंट खोलने और ऑपरेट करने का अधिकार होगा या होने लग गया। तो हम जब छोटे थे तब पैसे की चर्चा बच्चों के सामने होती भी नहीं थी।
पैसों की बात चल रही होती थी तो उनको वहाँ से भगा दिया जाता था। अब 10 साल का बच्चा अगर अपनी खुद की चेक बुक रखेगा तो नेचुरली उसकी कॉन्शियसनेस अबाउट मनी मैटर्स वुड बी मच मोर, और थोड़े टाइम के बाद में वो और अधिक समय कंप्यूटर स्क्रीन पर जो गेम्स के लिए दे रहा है तो हो सकता है वो शेयर मार्केट भी और ज़्यादा जल्दी समझने लग जाएगा। तो ये संदर्भ में खास इसलिए ला रहा कि डॉक्टर मेहरा, आप क्या सोचते हैं जो हमारा पैसे के साथ संबंध है, चाहे हम बच्चे हैं या बड़े हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमारा जो कॉन्सेप्ट ऑफ वननेस या विजन ऑफ वननेस है उसको प्रभावित करता है? आई थिंक मनी मेक्स लॉट ऑफ थिंग्स गो। आई थिंक जो जिसके पास नहीं है वो ज़्यादा चाहता है, जिसके पास है वो और ज़्यादा चाहता है। आई थिंक द सेटिस्फैक्शन नहीं है। सो द ग्रीड वर्ड डज प्ले अ रोल। Say once you're contented with what you have, you're not jealous of person beyond, above you. So what if we look at person below us, we are always satisfied and happy. So I think money is important, but if used properly in an honest way. जैसे गुरु बोलते हैं जितना कमाओ 10% लोगों के त्याग दो, ज्ञान दो. So I think money is important to educate kids, whether 10 is very good, not just in money, in character. I think we have to build the character first. So I will go in that. So I'll ask another dimension about money to Sunil Modi ji, but before that let me take this call again. Hello, ITV Live. हेलो, हाँ जी, नमस्कार. नमस्कार जी. ये वननेस पे जो बातचीत चल रही है जी, इसमें एक दो लफ्ज कहना चाहता हूँ. हाँ हाँ फरमाएं. हाँ अशोक जी. जी बोले सर. नमस्कार जी. नमस्कार नमस्कार. ये जितनी जब बाहर से लोग आए सिंध के रास्ते तो यहाँ के लोगों को सिंधु कहा गया और उसके बिगड़ते बिगड़ते हिंदू हो गए. जी. सारी देश भर में लोग हिंदू थे और उसके बाद अब कौमें बननी शुरू हो गई. जितनी कौमें होंगी उतनी नफरत होगी. अब हमारे सिख गुरुओं ने आप कभी नहीं कहा हम अलग कौम है. कभी किसी हिस्ट्री देख लीजिए. अब कौम आ गई, कल को मायावती कहने लगेगी मेरी कौम है. कौम में जितनी बटेंगी वो वननेस खत्म हो जाएगी. अब हम पढ़ाते हैं ये सिख का बच्चा है, ये गुरुद्वारे जाएगा, मंदिर जाएगा. तो सत श्री अकाल का जितने आप लोग बैठे हैं बताइए मतलब क्या है. मैं लोगों को पढ़ाता हूँ क्या है. मेरे अपने रिश्तेदार आधे सिख हैं. क्या एक माँ दो कौमों को जन्म देती है? यहाँ हिंदुस्तान में वो कहते हम कौम हो गए. जी जी. एक भाई हिंदू है, एक सिख है. सिख कौम अलग कैसे हुई? माँ तो एक है. जी जी. ये तो बेसिकली गलत. हम अपने आप को कौम बना देते हैं. कल को साईं के फॉलोअर हैं वो कौम बन जाएंगे, आसाराम के थे वो बन जाएंगे. ये कौमें क्रिएट हो जाएंगी. मायावती ने तो कर ही दी. जी जी जी. ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात ये कही है. डिफरेंस क्रिएट करते हैं. सत श्री अकाल का मतलब क्या है बताइए जरा. ये अभी बता दें. तो ये आप सुने जी. जो सत श्री अकाल का मतलब है ट्रुथ इज एटर्नल. The literally translation of Sat Sri Akal means truth is eternal. कि जो सच्चाई है वो सच्चाई सच हैगी. That is Sat Sri Akal. अकाल का मतलब होता है काल तो रहत. अगर तुसी पंजाबी गल समझदे हो, अकाल का मतलब होता जिहड़ा कदे डेथ ना होए. That is अकाल. सत means truth. Truth ये is. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. मैं बताऊं आपको. जी, आप भी बताएं. सत का मतलब है परमात्मा का नाम सत्य है और बाकी मिथ्या है, बाकी नहीं है. अकाल श्री का मतलब होता है पवित्र. जैसे हम कहते हैं श्री अशोक जी, श्री फलाना जी, ये पवित्र. और अकाल का मतलब है जिसको अकाल खत्म ना कर सके. परमात्मा एक ऐसी जिसको अकाल खत्म नहीं करता. हर चीज को अकाल जो है वो खत्म कर देता है. और आम मैं 50 बच्चों को पूछता हूँ जब गुरुद्वारे कभी जाता हूँ तो वो उनको पता ही नहीं सत श्री अकाल का मतलब. हम नारा लगाते हैं सत श्री अकाल. तो हमें असल में ये संस्कृत के वर्ड हैं सारे. सत श्री अकाल 3 चीजें हैं. सत्य है परमात्मा का नाम जो बिल्कुल सच है, बाकी मिथ्या है, खत्म है. और
श्री होता है पवित्र, श्री सो एंड सो, हम पवित्रता कहते हैं, प्योर होली। जी जी। और अकाल जिसको खत्म नहीं कर सके वो परमात्मा, बाकी सब चीज को परमात्मा खत्म कर देते, परमात्मा खत्म नहीं हो सकता। जी बहुत धन्यवाद है आपका, आपने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। धन्यवाद आपका मुझे टाइम देने का। कपूर बोल रहा हूँ। जी जी कपूर साहब, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो सुनील जी, उन्होंने जो बात कही उसको भी साथ में रखते हुए जब मैं आपकी तरफ बढ़ रहा हूँ, पहले हम थोड़ा सा संकेत कर रहे थे कि बच्चों के अंदर पैसे के साथ जो उनका संबंध है उसकी स्पष्टता बहुत जल्दी जल्दी आने से उनका ध्यान, ये जो बात कह रहे थे सत श्री अकाल का मतलब इन्होंने कहा कई बच्चों को पता नहीं। सो नॉट जस्ट छोटा बच्चा है या बड़े होने के बाद में भी जो पैसा रोल प्ले कर रहा है हमारी लाइफ में, इज इट टेकिंग अवे आवर सेंस ऑफ वननेस इन सम वे? देखिए, नॉलेज ऑफ मनी वेदर एट एज ऑफ 10 or 15 or 20, I think that to me is less significant of a question. Bigger question is, are we teaching message of oneness to our children at the age of 10, let's say for example, right? अगर हम उनको सही शिक्षा दे रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की सही शिक्षा दे रहे हैं, अगर क्या हम उनको ये शिक्षा दे रहे हैं कि that oneness also means कि we have to be part and parcel of with nature. Are we living in harmony with nature? Are we understanding how to eat which is in harmony with nature? Are we driving in ways that is in harmony with nature? Are we burning fuels that are in harmony with nature? Because when we are not, अभी आज की सबसे बड़ी न्यूज़ थी, प्रेसिडेंट ओबामा के ऑफिस से सारे यूएस सिटीजन्स को एक ईमेल गई है जिसके ऊपर क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर बहुत सीरियस मैसेज है कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज एक रियल चीज़ है। अब वी आर इन इट नाउ, इट्स नॉट ए क्वेश्चन के कभी वो फ्यूचर में आएगी, ऐसा नहीं है। वी आर इन इट राइट नाउ। 2012 जो था, दैट वाज द ईयर कि यूएसए के अंदर मोस्ट जो क्लाइमेटिक कंडीशन जो आई, सैंडी स्टॉर्म भी उसी टाइम पे आया, विच वाज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्टॉर्म्स इन यूएस हिस्ट्री। $65 बिलियन उसमें खर्च हुए। तो ये जो है एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो कि सारे वर्ल्ड के बच्चों को सीखना है, ना कि, और इंडिया में भी सीखना है बच्चों को। यूएसए में एज ए मैटर ऑफ फैक्ट बच्चों को ये चीज़ें जल्दी सिखाई जाती हैं। दे आर लर्निंग अबाउट हाउ टू लिव इन हार्मनी विद नेचर। तो हमें भी इंडिया में इस तरह की नॉलेज बच्चों को देनी है। और जहाँ तक क्वेश्चन है कि बच्चों को फाइनेंस की नॉलेज हम 10 साल की उम्र में दें या 15 साल की उम्र में दें, I think sooner cannot hurt as long as we are teaching them social responsibility as well. तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और विजन ऑफ वननेस, प्रकृति के साथ सामंजस्य, ये सारी बातें और जो हमारे होने का सार है उसके प्रति उनको सजग करने के बारे में हमारी सजगता, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। चलते चलते मैं आप सभी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि विजन ऑफ वननेस हमारे जीवन में आए, बना रहे, इसके लिए आप क्या सुझाव देंगे बहुत संक्षेप में? सबसे पहले आई विल टेल यू, चैरिटी बिगिंस एट होम। जो माँ बाप हैं, जो बड़े बहन भाई हैं, अपने छोटों को उनके सामने क्या बात करते हैं। बिजनेसमैन का बच्चा हमेशा बिजनेस के बारे में सोचता है। डॉक्टर मेरा का बेटा, बच्चे जो हैं, ही इज़ ए डॉक्टर, इनके बच्चे डॉक्टर बने। क्यों? मेजर का बच्चा जो आर्मी का बंदा होगा उसके बच्चे आर्मी में जाना पसंद करेंगे। बिकॉज व्हाट वी हियर ऑल द टाइम दैट रिफ्लेक्ट्स ऑन आवर कॉन्शियसनेस। हम क्या पढ़ते हैं, हम क्या देखते हैं, हम क्या खाते हैं, उन सब चीज़ों का असर हमारे दिमाग पे पड़ता है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम रात को सोने से पहले अगर कोई अच्छी किताब, अगर आप मुसलमान हैं कुरान पढ़ के सोएं, हिंदू हैं गीता पढ़ के सोएं, आप सिख हैं कोई गुरु ग्रंथ साहब का रीड कपल ऑफ शब्द, कुछ भी अगर आप अच्छा पढ़ के सोएंगे आपको नींद अच्छी आएगी और आपके जीवन में थिंग्स विल हैपन इन अ बेटर वे। सो वी आर इन ए कंट्रोल। मैं आई ऑलवेज टेल द किड्स 2 places to hang out when you're young. Make your books as your friends. Second thing what you can do is when you're grown up, go to the health club. 2 places to hang out, libraries and the health clubs. If we start doing that, you will find you will have a very good body and good mind on your shoulders. So thank you, that's a great idea. And त्रिपाठी जी, बहुत संक्षेप में आपका सुझाव?
श्रुतिर्विभिन्ना स्मृतिर्विभिन्ना नैको ऋषिर्यस्य मतन्न भिन्नः धर्मस्य तत्त्वं विहितं गुहायां महाजनो येन गताः सपन्थः। अनेक लोग हुए, बहुत संत हुए, बहुत महात्मा हुए, बहुत महान लोग हुए, सब अनेक धर्म हैं। हमें उसमें से एक रास्ता निकालना है। कौन सा रास्ता? हिंदू का, सिख का, इसका, उसका। सबसे महाभारत का श्लोक मैंने कहा है, एक है महाजनो येन गताः सपन्था। जिस पथ पर चल के महापुरुष लोग गए हों उसी पथ पर हम सब चलें, उनका अनुसरण हम लोग करें, सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और सब जो महापुरुष चले हैं सब एक ही रास्ते से चलकर एक ही मंजिल पर पहुँचे हैं। तो हम भी एक गंगा में अनेक घाट हैं, पर जिस घाट से उतरें आपको गंगा मिलेगी। क्या बात है। तो ये जो वो घाट आ गया है जहाँ पर इस कार्यक्रम को विराम देने का समय आ पहुँचा है। विजन ऑफ वननेस प्रिय है हम सबको कहीं ना कहीं, और यही विषय है जिसका आकर्षण और जिसके साथ एक रसमय संबंध है, जो सुनील मेहरा जी को, डॉक्टर सुनील मेहरा जी को, सुनील मोदी जी को, त्रिपाठी जी को और स्वर्णजीत सिंह जी को इस कार्यक्रम में लेकर आया। और उन्होंने आप तक जो बातें कही उसमें कहीं ना कहीं प्रेम की वो गंगा है जो हमारे भीतर के एकत्व को उजागर करती है। एंड लेट दिस विजन ऑफ वननेस गाइड अस टुवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर। Thanks a lot to all of them for joining us here and thanks to all of you for being with us. कल फिर आपकी सेवा में हाजिर होंगे ठीक 7:30 बजे। तब तक के लिए इजाज़त दें। नमस्कार।